جناب عمر مولا حضرت عثمان غنی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تبرہ بازیاں کی جا رہی ہیں، مگر صحابہ کی محبت دیکھیں۔ جب ایک صحابی نے مولا کائنات سے کہا تھا حضور مسجد نبوی کے منبر سے ساریہ کو کیا کہا جا رہا ہے، تو جناب علی نے کہا تھا، مولا کائنات نے کہا تھا خبردار وہ عمر ہے، عمر جو بھی بولے گا اس کی بڑی مضبوط دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، وہ عمر ہے جس کے مزاج کے مطابق آیات قرآنیہ کا نزول ہو رہا ہے، خبردار عمر نے کہا ہے تو دیکھا ہوگا ساریہ کو تبھی کہا ہے۔ آپ مجھے بتائے، آپ کہہ رہے تھے کہ آن لائن یہ 10-20 سال کی پیداوار ہے، جناب عمر کی نگاہوں نے جناب ساریہ کو آن لائن دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ آج کہتے ہو ایئر فون سے آواز کلیئر آتی ہے، جناب ساریہ نے کون سا ایئر فون لگایا تھا کہ جناب عمر کی آواز کو جناب ساریہ سن رہے ہیں؟ حضرات تاریخ آپ کہتے ہو کہ آج کا دور ترقی یافتہ ہے، مگر میں بتاؤں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک اس خاکدان گیتی پر ظاہری طور پر میرے مصطفیٰ موجود رہے۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حبیب ظاہری دنیا سے تشریف لے کر کے گئے، اس کے 900 سال کے بعد، 9 سال نہیں کہہ رہا ہوں میں، 90 سال نہیں کہہ رہا ہوں، 900 سال کے بعد مصر کی زمین پر پیدا ہوئے ہیں امام عبدالوہاب شعرانی۔ امام عبدالوہاب شعرانی اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنے قلم سے لکھا کہ اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ الگ الگ اساتذہ سے ہم نے تعلیمات حاصل کی، مگر بات جب بخاری کے تعلیم کی آئی ہے تو میں نے تنہا نہیں، میرے 8 ساتھیوں نے سوتے ہوئے نہیں، جاگنے کے عالم میں، عالم بیداری میں پوری بخاری ہم نے کسی دنیا دار سے نہیں، مدینے کے تاجدار سے کون کہہ رہا ہے؟ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں حضرات جبھی تو میرے امام نے بریلی کی زمین سے قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت والدین کانفرنس، فتح قاری ارباب احمد فاروقی صاحب کی بلا اور اللہ اکبر۔ 8 لوگوں نے عالم بیداری میں پوری بخاری سوتے ہوئے نہیں، عالم بیداری میں جاگنے کے عالم میں 900 سال کے بعد پوری بخاری، اور امام عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ ختم بخاری کے موقع پر آمنہ کے لال کی زبان فیض ترجمان سے جو الفاظ دعائیہ کلمات نکلے آج تک وہ مجھے کلمات یاد ہیں، سنو میں آپ کے ذہنوں کو حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے امام عبدالوہاب نے اپنے قلم سے لکھا کہ میں ختم بخاری کے بعد میرے آقا سے رشتہ غلامی اتنا مضبوط ہو گیا، اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں مصر میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا تھا، مصر میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا تھا اور میں آن لائن سلام، آپ کہتے ہو آن لائن یہ آج کی پیداوار ہے، خدا کی قسم ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، اپنے علماء کے قریب نہیں گئے، ہمارے سروں پر تو دھن سوار ہو گئی اپنے بیٹوں کو MBBS MS IS PCS بنانے کے لیے، ہم نے حلال اور حرام بھی نہیں دیکھا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں اپنے بیٹوں کو MBBS بنانے کے لیے پریشان ہو، اپنے بیٹوں کو IS اور PCS بنانے کے لیے پریشان ہو، کم سے کم اپنے بیٹوں کو عالم دین بنانے کے لیے پریشان ہو جاؤ یار۔ یہ مزاج جو اس گھرانے میں موجود ہے کہ باپ کی زندگی کے بعد اسے بھولا نہ جائے، بھائی کی زندگی کے بعد اسے بھولا نہ جائے۔ حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں میں اپنے نبی پر آن لائن سلام پڑھتا تھا۔ آن لائن سلام سمجھتے ہیں آپ؟ اور سلام کون سا؟ اگر عربی میں سلام نہیں پڑھ سکتے تو میں قربان جاؤں اپنے اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں اردو میں اپنی زبان میں سلام پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا اور لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شجاعت پہ لاکھوں سلام۔ مخالفین تک
جب یہ سلام پہنچا تو انہوں نے کہا لو بھائی ابھی تک ایک ایک سلام پڑھا جاتا تھا، اب لاکھوں لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پڑھوا رہے ہیں، 91 لاکھوں سلام پڑھا رہے ہیں۔ یہ خبر فاضل بریلوی تک پہنچی تو آپ فرماتے ہیں ابھی تک تو لاکھوں لاکھ پڑھا جاتا تھا، اب کل صبح سے پڑھو کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ تو پھر دشمنوں نے کہا لو ابھی تک لاکھوں لاکھ پڑھا رہے تھے اور اب کروڑوں کروڑ پڑھانے لگے، لاکھوں اور کروڑوں میں بات پہنچ گئی۔ تب میرے امام نے کہا تھا کہ اب نہ لاکھوں میں پڑھو نہ کروڑوں میں پڑھو، کاؤنٹنگ بند، شمار کرنا بند، اب آج سے پڑھو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام، کوئی گنتی نہیں، کوئی کاؤنٹنگ نہیں۔ یہ سلام کی بات میں نے کیوں کہی؟ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، اس سے زیادہ امپورٹنٹ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ میں نے حضور صوفی صاحب اللہ سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں نے سنت ادا کی حضور کی، اب ان کا جواب دینا واجب، اور یہ تو زندہ ہے۔ ذرا اپنے قبر پر جائیے، 100 سال پہلے جس قبر کا نشان آپ کو یاد ہو کہ میرے باپ نے دادا کو دفن کیا تھا، اس قبر پر جائیے اور کھڑے ہو کر کے کہیے السلام علیکم یا اہل القبر۔ علماء سے پوچھئے، اس کا جواب آپ تو نہیں سنیں گے، مگر میرے مصطفیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے، حدیث مصطفیٰ یہ کہتی ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ 100 سال پہلے دفن کیا ہے ہم نے، ڈھانچہ نہ ہو کوئی بات نہیں، ہڈیاں موجود نہ ہو کوئی بات نہیں، مردہ سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے۔ ہمیں یار اب ذرا اپنے ذہنوں کو حاضر کرو، اگر برگدوا سیف کا 100 سال پہلے دفن ہونے والا مردہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے تو اس عقیدے سے اپنے نبی پہ سلام پڑھو کہ میرا زندہ نبی سلام تو سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے۔ اور ذرا غور کیجئے عزیزان اللہ کہ میرا نبی سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان قاری ارباب فاروق صاحب قبلہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں امام کی بات کر، اس دور کی بات کر رہا ہوں، مسلکوں کی دیواریں اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے لوگ نہیں تھے۔ امام عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ 900 سال کے بعد میں مصر کی زمین پر پیدا ہوا، ختم بخاری میں نے آمنہ کے لال سے کیا، اور اس کے بعد رشتہ غلامی اتنا مضبوط ہو گیا کہ میں مصر میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا تھا اور آن لائن سلام پڑھتا تھا۔ آن لائن سلام کون سا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، جو آپ نماز کی حالت میں پڑھتے ہو، یہ آن لائن سلام ہے۔ ادھر سے سلام کیا، ادھر سے پلٹ کے جواب آتا ہے۔ امام عبدالوہاب فرماتے ہیں جیسے ہی میں اپنے نبی پر سلام پڑھتا تھا اور میں کہتا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، امام نے اپنے قلم سے لکھا رفع العرض بینی و بینک قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مصر سے لے کر مدینہ تک کے تمام حجابات ہٹا دیے جاتے تھے، میں سلام بھی پڑھتا تھا اور قبر مصطفیٰ کی زیارت بھی کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مصر میں بیٹھ کر مدینے کی زیارت کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ تو کریں عزیزان ملت اسلامیہ، موت ہمارے یہاں برگدوا صاحب اور پچپڑوا میں ہمیں یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں ایک بات ڈالی جا رہی ہے کہ جو مر گیا اس کا کام ختم ہو گیا، جو مر گیا اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مگر یاد رکھیے گا، آپ جماعت اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے، آپ یاد رکھیں کہ موت کسی کو مٹانے نہیں، صرف دنیا بدلوانے آتی ہے۔ موت کا ایک کام ہے، موت کسی کو مٹانے نہیں آتی، موت صرف دنیا بدلوانے آتی ہے۔ ذہنوں کو حاضر کیجئے گا، حضرات علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، جس دنیا میں ہم ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کسی دنیا میں تھے۔ اس دنیا کا نام عالم ارواح ہے، وہ روحوں کی دنیا ہے، وہ بھی ایک عالم ہے جہاں
अभी हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में मेरा रब जानता है कितनी अरवाह है, वो मेरा रब ठीक जानता है। हजरात, इस दुनिया में आने से पहले जिस दुनिया में हम थे उस दुनिया को आलम अरवाह कहा जाता है। आलम अरवाह से चले तो विलादत हमारी इस दुनिया में हुई, माँ के शिकम से हमने इस दुनिया में वजूद पाया और तारीख शाहिद है कि हम दुनिया में आए तो दुनिया बदलने का जो नाम है उसे विलादत, मौलूद, बर्थ, पैदाइश कहा जाता है। आलम अरवाह से चले आलम शहादत में, अभी जिस आलम में है इसे आलम शहादत कहा जाता है। आने का नाम विलादत है और इस दुनिया से जाने का नाम मौत है। इस दुनिया को ट्रांसफर और चेंज करने का नाम मौत है। अरवाह से चले शहादत में, शहादत से चलेंगे मौत आएगी और कहां जाएंगे? आलम बरज़ख में जाएंगे। हजारों साल तक, जब तक मेरा रब चाहेगा, हम बरज़खी जिंदगी में रहेंगे और उस कब्र की जिंदगी में जिसे बरज़खी जिंदगी कहा जाता है वहां रहना होगा। और फिर उस आलम के बाद भी एक आलम है जिसे आलम कयामत कहा जाता है। वो भी एक दुनिया है जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। गौर कीजिएगा, लगातार यहां से पचपड़वा से चले गैसड़ी, गैसड़ी से तुलसीपुर, तुलसीपुर से बलरामपुर, बलरामपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, लगातार हमारा सफर चल रहा है। लगातार सफर हमारा चल रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये सफर हमारा चला कहां से? आलम अरवाह से, अरवाह से शहादत में, शहादत से बरज़ख में, बरज़ख से आलम क़यामत में। आलम क़यामत के बाद भी एक आलम है जिसे यह आलम जन्नत कहा जाता है, यह आलम जहन्नम कहा जाता है। अब जरा गौर कीजिएगा हजरात मोहतरम, अगर ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो अकीदा दिया जा रहा है कि मर गए तो फातिहा कैसा, मर गए तो इशाल सवाब कैसा, मर गए तो न्याज कैसी, आप ज़हनों को हासिल कीजिए और ईमानदारी के साथ मुझे बताइएगा। हज़रत अल्लामा रेहानुल के पाइप अंदर डालते हो, अल्लाह पानी के चश्मे बहा देता है। यार शुक्र अदा करो अपने रब का। तारीख बताती है मुंबई के इलाकों में ऐसे भी इंटीरियर इलाके हैं जहां आज भी टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है, जहां आज भी गैलन लेकर लाइन लगाई जाती है, बोतलों में पानी भरा जाता है। एक बात मुझे बताइए, अगर मौत ने किसी को मिटा दिया तो जहां पानी पीने की किल्लत है वहां 12 बाल्टी पानी से किसी मुर्दे को नहलाने की क्या जरूरत है? यार मरने वाला मिट गया, काम खत्म। जब रिश्ते नाते खत्म हो गए तो 12 बाल्टी पानी से नहलाया क्यों जा रहा है? तो तारीख बताती है नहीं नहीं, इसे पानी से नहलाया जाएगा, पहले गुस्ल कराया जाएगा, मरने के बाद फिर वजू कराया जाएगा और फिर उसके बाद पूरे जिस्म पर पानी बहाया जाएगा। अब ज़हनों को हासिल कीजिएगा, मरने वाला अगर मिट गया है, कोई रिश्ता नहीं रह गया है, तो भाई जहां जिंदों को पीने के लिए पानी मैसर नहीं है वहां मुर्दों को पानी क्यों? 12 बाल्टी पानी से नहलाने की क्या जरूरत? आवाज आई तुम नहला दो। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि मरने के बाद क्या कहा जाता है? पानी में बैर के पत्ते ले जाकर के डाल दो। और भाई देखो, पानी इतना ही गर्म रखना जितना जिंदगी में कोई पानी गर्म झेल सकता है, नीम गर्म पानी होना चाहिए। मरने वाले का कीमा बना दो, मरने वाले की हड्डियां तोड़ दो, मरने वाले को कई हिस्सों में तकसीम कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ये नीम गर्म पानी क्यों कहा जा रहा है? 12 बाल्टी पानी इसे नहलाया क्यों जा रहा है? अच्छा, नहला चुके, अब हुक्म होता है कि लाओ 16-17 मीटर का चमचमाता हुआ बढ़िया कफन लेकर के आया जाए। भाई, जब आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जिंदों को पहनने के लिए ठीक से कपड़े मैसर नहीं हैं, जिस समाज में पहनने के लिए जिंदों के पास कपड़ा नहीं है, वहां मिटने वाले को 16-17 मीटर का कफन देने की क्या जरूरत है? यार, ये कफन ले जाकर के किसी जिंदे के सर पर रख दो, किसी गरीब बेटी के बाप वो के हवाले कर दिया जाए, वो अपनी बेटियों का तन और बेटियों का सर ढकने का काम करेगा। मगर नहीं, नहलाया, अब चमचमाता हुआ कफन उसे दिया जा रहा है। कफन जब तैयार हो गया तो आवाज आती है, लाओ भाई जन्नतुल फिरदौस वाली शीशी कहां है? जिस समाज में जिंदों के पास लगाने के लिए खुशबू मौजूद न हो,
वहां मुर्दे को एक बाटली शीशी जन्नतुल फिरदौस की फालतू में क्यों लगाई जा रही है? अच्छा, अब जब खुशबू लग गई तो कहा भाई लाओ जनाजे की चारपाई उठा करके लेके आओ। अब जनाजे की चारपाई लाए और 4 कांधों पर उठाया। अब सैकड़ों का मजमा जनाजे के पीछे पीछे। तो 4 बुजुर्गों ने आवाज लगा के कहा, हाँ हाँ तेज ना चलो, झटका ना लगने पाए, जर्क ना लगे, आहिस्ता आहिस्ता लेकर के चलो। ए भाई, जब मरने वाला खत्म है, काम खत्म है, चाहे पैर पकड़ के ले जाओ, रस्से से बांध के खींच कर ले जाओ, जैसे समझ में आए वैसे ले जाओ। यार, ये आहिस्ता आहिस्ता लेकर के चलने की बात क्यों की जा रही है? अच्छा, अब गौर कीजिएगा, नहलाया, पानी कम था, 12 बाल्टी पानी से नहलाया, चमचमाता हुआ कफन पहनाया, 1 बाटली जन्नतुल फिरदौस की लगाई और कंधे पे उठा के आहिस्ता आहिस्ता लेकर के चलने लगे। अब जब खुले मैदान में पहुंचे और पहुंचने के बाद जनाजे को सामने रखा, जहनों को हाजिर कीजिएगा, ये मरने वाले ने कौन सा ऐसा काम किया है? ये जिंदा था, फजर पढ़ता था, अल्लामा रेहानुल हसन की इब्तिदा में पढ़ता था, इमाम आगे मुक्तदी पीछे, जोहर में इमाम आगे मुक्तदी पीछे, असर में इमाम आगे मुक्तदी पीछे, मगरिब में, ऐशा में, जुमा में, ईदैन में इमाम आगे मुक्तदी पीछे। आज ये कौन सा काम ऐसा कर दिया है कि इमाम पीछे है, मुर्दा आगे है, मुक्तदी इनका जो आज मुर्दे की हालत में है, जनाजे की चारपाई पर लेटा है, ये आगे क्यों? कभी सोचा है आपने कि यार जब मर गया, मिट गया, तो इतना सिस्टम देने की क्या जरूरत है? कफन पहनाओ, खुशबू लगाओ, आहिस्ता लेके चलो, इमाम के आगे ले जाकर के रखा। और जब कब्र में उतारने लगे तो कहा जाता है भाई देखिए, चेहरे को किबले की जानिब कर दीजिए। चेहरे को किबले की जानिब करने का क्या मुराद है? इससे क्या मतलब निकलता है मेरे भाई? आप जानते हैं, जब मुर्दे को घर से लेकर के चले और कब्रिस्तान में पहुंचे, जनाजे की नमाज पढ़ने की तैयारी होने लगी और इमाम के आगे जब मुर्दे की चारपाई को रखा, जनाजे की चारपाई को रखा, तो लोगों ने कहा यार कौन सा नेक काम इसने किया है कि आज इमाम साहब के आगे रखा है? तो जानते हैं, आवाज आई, ए लोगों, आज तुम उसके ताल्लुक से जानना चाहते हो? रोज ये मेहमान होता था अपने मस्जिद के इमाम का, आज ये किसी दुनिया के इमाम का मेहमान नहीं है, आज इमामुल अंबिया का मेहमान बन गया। यार तुम तो अभी कब्र में इसे लेटा के वापस आ जाओगे, मगर ये मरने वाला जो शख्स है, 40 कदम पीछे हटोगे तो इसे मुस्तफा के रुखे वज़ुहा का दीदार होने वाला है। यार इसका मकाम व मर्तबा बहुत बुलंदो वाला है। आप गौर कीजिएगा, हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि मरने वाला मर गया तो काम खत्म हो गया। मरने वाला मरा नहीं है, सिर्फ दुनिया बदली है उसने। मौत किसी को मिटाने नहीं आती, मौत सिर्फ दुनिया बदलवाने के लिए आती है। हजरात आप जानते हैं, कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल का नाम सुना होगा। अपने अपने मतलब के हिसाब से उनके अशार को चोरी करके सभी लोग पढ़ते हैं, मगर शायद अल्लामा इकबाल की शख्सियत को लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। हमने अल्लामा इकबाल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म समझा है, हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म समझा है, हमने यूरोप के मदरसे और यूरोप के कॉलेजों में पढ़ने वाला एक तालिब इल्म समझा है। मगर अल्लामा इकबाल से लोगों ने उस दौर में पूछा था, ए अल्लामा इकबाल, शेर हम भी कहते हैं, नात हम भी लिखते हैं, अशार तो हम भी कहते हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। अल्लामा आप जैसे ही कोई शेर रकम करते हो, पूरी दुनिया में फैल जाता है, पूरी दुनिया में उसके पढ़ने वाले लोग होते हैं। सुनो अल्लामा इकबाल के जवाब। अल्लामा इकबाल ने कहा था, किस अल्लामा की बात कर रहा हूं? आज हमारा नौजवान अगर BBA MC और BCA करने लखनऊ चला जाता है, अपनी तहजीब को आपके हवाले कर देता है। नमाज पढ़ना उसके लिए बड़ी मुसीबत और मुश्किल का काम हो जाए। अरे साहब हम तो ठहरे इंजीनियर साहब, और यहाँ तालीम का आलम यहाँ तक है कि एक साहब ने अपने बच्चे को IAS बनाने के लिए अपने गांव से शहर में भेज दिया। कहा जा बेटा कामयाब हो जाना तभी लौट करके आना। तो बस उन्होंने रुपया पैसा खर्च किया, अपने बेटे को गांव से शहर की तरफ भेज दिया। बेटा वही IAS कंपटीशन में बैठा, IAS कंपटीशन बीट कर लिया और फिर
बड़े ओहदे पर फाइज हो गया और चंद सालों के बाद अब्बा का गांव में इंतकाल हो गया। तारीख बताती है कि इस कदर दुनियादारी उस आदमी पर गालिब थी, न नमाज से मतलब, न रोजे से, न हज से, न ज़कात से। वो साहब कहते थे आला ओहदे पर फाइज होने वाले कि मेरे इल्म ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, एजुकेशन और मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कभी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा, कभी उलमा की सरपरस्ती में नहीं बैठे, मदरसे का मुंह तो कभी देखा ही नहीं। मगर जब आइए साहब को खबर हुई अब्बा का इंतकाल हो गया, तो आइए साहब ने बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली और घर आए। और जब गांव वालों ने नहला धुला के अब्बा को कफन पहना के और जनाजे की चारपाई पे लेटा के खुले बाग में ले जाके उनकी चारपाई को रखा, तो आइए साहब ने पूछा कि भाई यहाँ क्यों रख रहे हो आप, इसे ले चल के रखो, कब्र में उतारो, अब यहाँ क्यों रख? कहा यार अभी नमाज जनाजा पढ़नी है। तो आइए साहब पहली ही सफ में खड़े थे और उन्होंने कहा कि भाई अब अगर ऐसे जमीन पर हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे सब लोगों के? यार रुकू सजदा कैसे किया जाएगा? कम से कम यहाँ चटाई तो बिछाई जानी चाहिए थी, चटाई क्यों नहीं बिछाई आपने? तो अगल बगल के गांव वालों ने कहा खुदा खैर करे, ऐसी तरक्की को आग लगे जिससे ये न पता हो कि जनाजे की नमाज में सजदा और रुकू होता ही नहीं है। इतनी तरक्की हासिल करने के चक्कर में हमने अपने मजहबी तशख्खुस को भी आग लगा डाली, किरदार और गुफ्तार को भी बदल डाला। हज़रात तारीख बताती है कि आप अपने यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है तो उनसे पूछिए कि भाई कहाँ जा रहे हो? वो मरहूम के लिए दुआ करने जा रहे हैं ना कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। मगर इस्लाम पहला बेनिफिट जिंदों को अता करता है, ये चीज जान लीजिए। इस्लाम पहला बेनिफिट, पहला फायदा जिंदों को अता करता है। आप कहेंगे हजरत बात समझ में नहीं आई। आज जिस आयत को मैंने अपना टॉपिक और उन्वान बनाया है उसे सुने। अल्लाह कुरान में ईसाल सवाब का तरीका बता रहा है। क्या? रब्बना फिर लना, हम बैठे हैं इज्तिमाई तौर पर मरहूमीन के लिए दुआ करने, मगर जैसे ही दुआ के लिए हाथ हमने उठाया तो सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलता है, ऐ हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ हमारे रब हमारी खताओं को बख्श दे, हमारी बख्शिश फरमा दे। ये जिंदों के लिए एडवांस में पहले ही पलट के इन्हें सवाब मिल रहा है। वल इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमसे पहले ईमान के साथ जो लोग दुनिया से तशरीफ ले गए अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐसे ही नमाज़े जनाजा में हम सोचते हैं कि गए हैं मय्यत के लिए दुआ कर रहे हैं, मगर जैसे ही सफ़बंदी हुई इमाम कहते हैं पहली तकबीर के बाद सना, दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिम, तीसरी तकबीर के बाद दुआए मग़फ़िरत, चौथी तकबीर के बाद सलाम, तीसरी तकबीर के बाद जानते हैं क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ए अल्लाह जितने लोग सफ़बंदी करके खड़े हैं मौला इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ए मेरे परवरदिगार, गए थे मुर्दे के लिए दुआ करने, मगर पहला बेनिफिट पलट के जिंदों को मिल रहा है। ए अल्लाह जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे, फिर इस मय्यत की मग़फ़िरत फरमा दे, जो हाजिर है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, जो हाजिर नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। छोटे बड़े मर्द औरत सबके लिए ईसाल सवाब की दुआ की जाती है। अल्लामा इक़बाल को निगाहों के सामने रखा है। अल्लामा इक़बाल से पूछा गया था, अल्लामा कौन सा काम करते हो कि आपके अशार को पूरी दुनिया के लोग जान जाते हैं? सुनो, अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए 3000 मरतबा जब तक आमिना के लाल पे दरूद नहीं पढ़ लेता दूसरा कोई काम नहीं करता। आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं 3000 मरतबा जब तक मैं दरूद नहीं पढ़ लेता तब तक मैं दुनिया का कोई काम शुरू नहीं करता। सुनो, 3000 मरतबा अल्लामा इक़बाल, वो अल्लामा इक़बाल जिनकी तारीफ मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अल्लामा इक़बाल के खादिमे खास ने, जिसने आपके विसाल के बाद, अल्लामा इक़बाल के विसाल के बाद, जिसने एक गिनती में, जिसे खोका कहते हैं, गिनती कहते हैं, जो पान वाले गिनती लगाते हैं, उस खादिम का बयान है
कि मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि ठीक मेरे सामने एक खोखा है, उस खोखे में एक सफेद दाढ़ी वाला खूबसूरत बाबा बैठा हुआ है, और मैंने देखा कि उस खोखे में वो बाबा बैठ करके लस्सी बना रहा है। बस मेरी खुशी की इंतहा न रही, मैं दौड़ा हुआ गया, मैंने कहा बाबा मुझे लस्सी दे दो, मेरे अल्लामा के घर में मेहमान आए हुए हैं। उन्होंने जल्दी से लस्सी बनाई और लस्सी बनाने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पूछा बाबा कितने पैसे हो गए, कितने रुपए आपको दे दे? उस खादिम का बयान है कि मेरे दिल में ये बात आई, मैं पूछूं कि 2:30 बजे रात में जो बाजार आज तक मैंने नहीं देखा, अचानक ये बाजार कहां से? बाबा आप कहां से अचानक आ गए? आपका खोखा कहां से आ गया? मगर मैंने सोचा कि मेहमान आए हैं, कहीं ताखीर न हो जाए, जल्दी से मैंने लस्सी लिया और उस बाबा से मैंने पूछा बाबा एक बात तो बताओ कि ये लस्सी के पैसे कितने हुए? तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा कि जाओ जाओ लस्सी लेकर के जाओ, हमारा और इकबाल का मामला चलता रहता है, बराबर हमारा उनका लेन देन होता रहता है। अल्लामा इकबाल के खादिम का बयान है कि मेरे हैरत की इंतहा न रही। अल्लामा के जितने जानने वाले थे मैं सबको जानता था, मगर ये कैसा बाबा था जिसे मैं नहीं जानता था, मगर ये मेरे आका को जानता था, ये अल्लामा इकबाल को जानता था। कहा बस जब उन्होंने कहा तो मैंने लस्सी लिया और लेकर के आया। दरवाजे पर दस्तक दी, अल्लामा इकबाल अपने बंद कमरे से बाहर निकले और निकलने के बाद उन्होंने मेरे हाथ से लस्सी ली, कमरे में गए, दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ी देर तक मुझे चिमगुइयों की आवाज आने लगी। गुफ्तो शरीफ का सिलसिला चलता रहा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दो लोग आपस में कमरे में बात कर रहे हो। एक आवाज से मैंने अल्लामा इकबाल की सुनी, मगर दूसरी आवाज के बारे में मुझे जानकारी न हो सकी, मगर मेरे हैरत की इंतहा न रही। मैं अपने कमरे में गया और जाने के बाद दरवाजे को मैंने बंद कर दिया, मगर कमरे के सुराख से, दरवाजे के सुराख से मैं बार बार झांकता रहा, कब निकलेगा ये मेहमान? कौन है जो 2:30 बजे रात में लस्सी का मुतालबा कर रहा है? हजरात उस खादिम का बयान है कि जैसे ही दरवाजा खुला मैं चौकन्ना हो गया। मैंने देखा ये खूबसूरत चेहरा दरवाजे से बाहर निकला, वो आगे आगे, अल्लामा इकबाल पीछे पीछे। फिर मैंने देखा कि तेजी के साथ उस बुजुर्ग ने, जो अभी कमरे से बाहर निकले थे, बुजुर्ग का पहला कदम अल्लामा की दहलीज पर था, दूसरा कदम गली के आखिर में इंड पर था। इतना लंबा कदम था। मैं दरवाजे से बाहर आया और आने के बाद मैंने कहा हुजूर वाला अगर आप बाहर नहीं जाते तो मुझे इजाजत दे, मैं आपके मेहमान को तेजी के साथ जरा आबादी के बाहर का रास्ता बता दूं। अल्लामा ने कहा था नहीं नहीं, और अगर जाना चाहते हो तो जाओ, देखो अगर मुलाकात हो जाए तो उन्हें मार्केट से बाहर दे दो। अल्लामा के खादिम का बयान है कि फिर मैं पहुंचा, उसी गली में मैंने कदम रखा जिस रास्ते से बुजुर्ग को जाते हुए मैंने देखा था। मैंने देखा न वहां कोई बुजुर्ग है, न कोई खोखा है, न कोई गिमटी है, न कोई बाबा है, न लस्सी बनाने वाला कोई है। मेरे हैरत की इंतहा न रही, जल्दी से मैं थरथराता हुआ, कांपता हुआ, दौड़ता हुआ आया, अल्लामा इकबाल के कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर वाला सच सच मुझे बताइएगा ये कौन सा मेहमान था जिसका पहला कदम आपकी चौखट पर था, दूसरा कदम गली के इंड पर था? और हुजूर यहाँ लस्सी की दुकान पर अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था, न वहां लस्सी है, न बाबा है, न खोखा है, न गिनती है, कुछ भी नहीं। बात मेरे समझ में नहीं आती, हुजूर वाला मामला क्या है, सच सच बता दे। अल्लामा इकबाल गर्म तबीयत के मालिक थे। आप इरशाद फरमाते हैं खबरदार ए खादिम खास, तुम्हें ये पूछने की इजाजत नहीं है। उस खादिम का बयान है कि मैं अल्लामा के कदमों में गिर गया और गिरने के बाद मैंने कहा हुजूर आज तक किसी चीज के लिए कभी जिद नहीं की है, आज पहली मर्तबा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा मेहमान था, ये मामला मेरे समझ में नहीं आता। तारीख बताती है अल्लामा इकबाल ने उस खादिम खास से, अपने खादिम खास से कहा था कि वादा करो कि मेरी जिंदगी तक इस राज को किसी के सामने कभी फाश नहीं करोगे, कभी इस मामले का जिक्र मेरी जिंदगी तक किसी के सामने नहीं करोगे। मैंने कसम खा के वादा किया कि हुजूर वाला आपकी जिंदगी तक कभी किसी से मैं इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। कब अल्लामा
اقبال نے کہا تھا سنو اے میرے خادم خاص، میرے بند کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے والا وہ کوئی اور نہیں، سلطان الہند خواجہ فرید نواز کی ذات جو بند کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بیٹا جہاں سے لسی لینے گئے تھے وہ کوئی دنیاوی دکاندار نہیں تھا، وہ داتا علی بجویری کی ذات تھی۔ بیٹا دراصل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ موت مٹانے آتی ہے، موت مٹانے نہیں صرف دنیا کو بدلوانے آتی ہے، موت کسی کو مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ حضرات محترم تو آپ اپنے ذہنوں کو حاضر کیجئے گا کہ موت کبھی کسی کو مٹانے نہیں آتی، موت صرف دنیا کو بدلوانے کے لیے آتی ہے۔ اور وہ موت جس موت کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ دہشت میں پل رہے ہیں جنہوں نے ڈبل ڈوز لیا ہے ویکسین کا، وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں اللہ کیا ہوگا، کب خون بلڈ کلاٹ کر جائے گا، کب کیا ہوگا۔ ڈرو مت، یقین کے ساتھ کثرت سے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، مصطفیٰ کریم سے رشتہ غلامی کو اور مضبوط کر دو۔ موت تو آنی ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، موت آئے گی، ہر حال میں آئے گی، وقت مقررہ پر موت آ کر کے رہے گی۔ موت آئی ہے تو اسی منبر سے قاری رضی اللہ مرحوم نے آخری سانس لیا ہے، موت آئی ہے تو سجاد نظامی کا گلا گھونٹ کے مار دیا گیا ہے، موت آئی ہے تو عراق کے قاری قرآن نے منبر پر ہی دم توڑ دیا ہے، موت آئی ہے تو 3 سال کے پہلے میرے عزیز دوست دولہا بن کر کے اسٹیج پر بیٹھا تھا، دلہن سے اجازت لینے کے لیے امام صاحب گئے اور پلٹ کے آئے تو دولہا پھر کبھی نہیں بولا، اب قیامت میں حساب و کتاب کے وقت بولے گا۔ یعنی موت کسی بھی حالت میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ جو ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہو اپنا بھی ٹائم آئے گا، خدا کی قسم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے پردھان منتری بننے جا رہے ہو، 100 روپے کا ٹی شرٹ خرید کے ایسے سینہ تان کے چل رہے ہیں، اپنا بھی ٹائم آئے گا۔ جانتے ہو لکھنے والے نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ لکھا ہے، اپنا بھی ٹائم آئے گا، بھنگاریا سیٹ بنو گے کہ نہیں بنو گے، پیو پیو لکڑے والا بنو گے، سیٹ بنو گے کہ نہیں بنو گے، اس کی ضمانت نہیں ہے، مگر اس ٹی شرٹ کو دھل کے پریس کر کے اپنے گھر میں لے جا کر کے رکھ دینا، اور جب برگدوا صاحب پہ خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اعلان ہو کہ جنازہ تیار ہے، کفن پہنایا جا چکا ہے، اب شہر خاموشہ کی طرف چلنے والے ہیں، جلدی سے گودریج کی الماری سے اس والی ٹی شرٹ کو نکالنا، پہننا، اور پہن کے آ کے جنازے کے سرہانے آ کے کھڑے ہو جانا، ایک بار جنازے کو دیکھنا اور دوسرے بار اپنے سینے پر لکھا دیکھنا، لکھا ہے بیٹا یہ تو جا رہا ہے، اپنا بھی ٹائم آئے گا، یہ تو حقیقت ہے کہ اپنا بھی ٹائم آئے گا، کچھ ہو نہ ہو مگر اس جنازے کی چارپائی پر ہمیں لیٹنا ہی ہے۔ کچھ نوجوان کچھ چوراہوں پر بیٹھ کر ایسے بٹن وٹن کھول کے ارے ہم کو موت سے کیا ڈرنا، سنو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور شریف میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد السلام علیکم یا ابراہیم، وعلیکم السلام، اے موت کے فرشتے کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ حضور والا آیا تھا، بس یوں ہی ملاقات کے غرض سے آیا تھا۔ جناب ابراہیم عرض کرتے ہیں اے موت کے فرشتے ایک بات تو بتا دے کہ جب تو کسی گنہگار کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہے تو تیری شکل کیسی ہوتی ہے، تیرا حلیہ کیسا ہوتا ہے، تیری شکل و شباہت کیسی ہوتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ موت کے فرشتے نے جناب ابراہیم خلیل اللہ سے کہا او خلیل یہ نہ کہیے کہ میری شکل و شباہت کیسی ہوتی ہے، کہا نہیں بتاؤ یار تمہارا چہرہ مہرہ کیسا ہوتا ہے، تم دکھتے کیسے ہو؟ موت کے فرشتے نے کہا تھا ابراہیم منجنیق کے ذریعے نارے نمرود میں چھلانگ لگا دینا یہ آسان ہے، اپنے بیٹے کو منا میں لٹا کر اس کے گردن پر چھری چلا دینا یہ بھی آسان ہے، اپنی بیوی ہاجرہ کو جنگل بیابان میں چھوڑ دینا یہ بھی بڑا آسان کام ہے، تخت نمرود پر چڑھ کر تنہا اعلان کلمت الحق کا اعلان کرنا یہ بھی بڑا آسان کام ہے، اور معبودان باطلہ کا کیسے
जलीली से जनाजा निकालना भी ये भी बड़ा आसान काम है। इब्राहिम सब आसान है, मगर याद रखिएगा कि मेरा चेहरा देखना बहुत मुश्किल है। जनाब इब्राहिम ने कहा, लो इतने मजबूत कलेजे का मालिक हूँ यार, बताओ तुम्हारी शक्ल कैसी होती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब में लिखा कि मौत के फरिश्ते ने जनाब इब्राहिम के इसरार के बाद उसने कहा था, ए इब्राहिम अपने चेहरे को पीछे की जानिब फेर लीजिए। जनाब इब्राहिम ने अपने चेहरे को पीछे की जानिब फेरा, मौत का फरिश्ता असली हालत में आया और उसने आवाज लगाई, इब्राहिम अब जरा मेरी तरफ पलट करके देखो। जिसने मिना में अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चला दी, हाथ न कांपा। जिसने अपनी बीवी हाजरा को जंगल में छोड़ा तो उसके दिल पर असर न हुआ। उस जनाब इब्राहिम का बयान है। अल्लामा जलालुद्दीन ने अपनी किताब में लिखा कि जनाब इब्राहिम का बयान है कि मैंने जब पलट के देखा तो नजर भर के नहीं देखा, हमने नजरें जमा के नहीं देखा। हल्का सा शायबा मौत के फरिश्ते पर पड़ा। जनाब इब्राहिम जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। मौत के फरिश्ते ने हाथ रखा, ए इब्राहिम उठिए, आप तो कहते थे बड़े मजबूत कलेजे के मालिक हो आप। जनाब इब्राहिम अर्ज करते हैं, ए मौत के फरिश्ते, मैंने सुना था कि कब्र में अजाब होगा, मैंने सुना है कि हश्र में अजाब होगा, जहन्नम में अजाब होगा, मगर ए मौत के फरिश्ते इस शक्ल में तेरा आ जाना ही सबसे बड़ा अजाब है। लोगों ने पूछा था, ए इब्राहिम आपने कौन सी ऐसी बात देखी कि मौत के फरिश्ते की शक्ल ही आपको सबसे बड़ी अजाब लगने लगी। तो जानते हैं हजरत इब्राहिम ने कहा था कि मौत के फरिश्ते के सर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरे जिस्म पर सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें थी, सिर्फ आंखें। यहां 2 के बजाय 3 आंख हो जाए तो सोशल मीडिया पर दौड़ जाएगा। गाय को 4 पैर के बजाय 5 पैर हो जाए तो गाय नहीं, वो एटीएम मशीन हो जाती है। आंख में लोहे का सुज्जा, जिससे बोरा सिलते हो ना, लोहे का राड पड़ा हुआ था। अल्लामा जलालुद्दीन लिखते हैं कि मौत का फरिश्ता कह रहा था, ए इब्राहिम ऐसे ही इसी हालत में गुनहगार के जिस्म में दाखिल हो जाता हूँ, और जब बंदा गुनहगार होता है उसकी रूह को बेदर्दी के साथ खींच कर लाकर उसके घुटनों में छोड़ देता हूँ। इतनी तकलीफ की पिडलियों पर पिडलियां रगड़ता है, और उसकी बीवी पूछती है, मुझे पहचानते हो नहीं? उसका बेटा है, पूछता है, अब्बा मुझे जानते हो नहीं? और आखिरी वक्त में बिस्तरे मर्ग पर लेट कर बंदा सोचता है, काश इन घुटनों से मैंने रुकू और सजदे कर लिए होते तो शायद ये सबकी न झेलनी पड़ती। और गुनहगार बंदा होता है, सूद खाने वाला बंदा होता है, हराम खाने वाला बंदा होता है। मौत का फरिश्ता कह रहा था, ए इब्राहिम रूह को बेदर्दी से खींचता हूँ और पेट में लाकर छोड़ देता हूँ। ऐसा मरोड़ होता है, ऐसा दर्द होता है कि आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मौत के वक्त लगने वाली प्यास से पनाह मांगो, पनाह मांगो, पनाह मांगो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर पनाह न मांग करके मरने वाले को ज्यादा पानी पिला दिया जाए तब क्या पास प्यास नहीं बुझ जाएगी? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मौत के वक्त जो प्यास लगती है, पानी तो छोड़ो, अगर पूरे समंदर का पानी उठा के पिला दो तो भी उसकी प्यास बुझने का नाम नहीं लेती है। हज़रात मोहतरम, मैं सिर्फ आपसे इतनी इल्तिमास और इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बदलिए अपने आप को। मौत का वक्त मुकर्रर है। अगर जमानत है कि 150 साल तक कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जमानत इतनी भी नहीं है कि सोएंगे, उठेंगे या नहीं उठेंगे, तो आज इसी महफिल में बैठकर तौबा कीजिए, इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। यही बैठकर अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारी नमाजें कज़ा नहीं होंगी। यही बैठकर तहैया कीजिए कि इंशाअल्लाह कम से कम 313 मरतबा हर रोज अपने आका पे दरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे। हम किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे, हम किसी की गीबत नहीं करेंगे। हजरात मोहतरम, तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि मौत किसी को मिटाने नहीं, सिर्फ दुनिया को बदलवाने आती है। और फिर अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा। याद कीजिए
अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मती कब्रों में दाखिल होंगे तो गुनाहों का गट्ठर लेकर के दाखिल होंगे। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब लोग गट्ठर के साथ दाखिल होंगे तो कब्रों से उठेंगे तो गट्ठर लेकर के गुनाहों का उठेंगे? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं नहीं नहीं, जाएगा मेरा उम्मती तो गुनाहों का गट्ठर लेकर जाएगा, लेकिन जब वो अपनी कब्रों से निकलेगा तो एकदम क्लीन, साफ, शफाफ, चमचमाता हुआ निकलेगा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब गट्ठर लेके गया था, न नमाज पढ़ा, न रोजा, न हज, न ज़कात, जब कोई काम कब्र में न कर सका तो वो गुनाहों वाला गट्ठर कहाँ गया? जो गुनाह का गट्ठर था वो कहाँ गया? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाले ने अपने पीछे अपने बेटों को छोड़ रखा था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ रखा था, अपने ऐसा वोकरा को छोड़ रखा था। इस कद्र उन्होंने अपने मुर्दे के लिए मग़फ़िरत की दुआ